morning, student. Now take page number 131 in English workbook. हमने पैराग्राफ 8 तक ऑलरेडी फिलअप कर लिया है. नाउ कम ऑन पैराग्राफ नंबर 9. हेमेंद्र मोहन बोस ऑफ कोलकाता imported the phonograph and made the gramophone record. These records were popularly known as Bose records. Now write true or false. First, हेमेंद्र बोस मेड द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड. ट्रू, उन्होंने ही बनाया था. सेकेंड है हेमेंद्र बोस इम्पोर्टेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो वो फॉल्स आएगा. देन नंबर 2 पे राइट द करेक्ट ऑप्शन. हेमेंद्र मोहन बोस मेड द ग्रामोफोन record. Number 10. The first music school in India was the Gandharva Mahavidyalaya in Lahore, which was a part of India at that time. It was set up by Pandit Palushkar, who was born in Maharashtra. Now true and false. First, M.S. Shubhlakshmi started the first music school in India. False. Gandharva Mahavidyalaya was set up by Pandit Palushkar. So true. Then correct option. The first music school was started by Pandit Palushkar. तो किसके म्यूजिक स्कूल तो उनके द्वारा हुई, तो आंसर आएगा बी. देन द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज द गंधर्व महाविद्यालय. नंबर 11. द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव Padma Bhushan was M.S. Subbulakshmi. She received the Padma Bhushan in the year 1954. She was popularly known as the Nightingale of India. She was born on September 16, 1916 in the temple city of Madurai. Now, here true and false. Subbulakshmi was called the Koyal of India. False. वो तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है. सुब्बलक्ष्मी रिसीव द पद्म भूषण. नो, सॉरी पद्म भूषण. ट्रू, पद्म भूषण ये अवार्ड उसने रिसीव किया था. देन सुब्बलक्ष्मी वॉज बोर्न इन मद्रास. नो, मदुराई है. देन टर्न द पेज, फिल इन द ब्लैंक्स. सुब्बलक्ष्मी वॉज बोर्न इन मदुराई. नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन. Subbulakshmi was known as the Nightingale of India. Number 2. Subbulakshmi was the first musician to receive the Padma Bhushan. Number 12 paragraph. According to a legend, once Mughal Emperor Akbar heard about the wonderful effect of the Rag Deepak. He was fascinated by this idea and asked his court musician Tansin to sing राग दीपक, द राग ऑफ फायर. हमने पढ़ा था ये स्टोरी में कि अकबर को, जो एम्परर है, जो राजा है, उसको राग दीपक सुनने को एक दिन उनका मन हुआ था. तो राग दीपक है वो तानसेन गाते हैं और उनको भी पता था कि ये राग ऑफ फायर है. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, अकबर वॉज फैसिनेटेड बाय द मल्हार राग. फॉल्स. Rag Deepak is the rag of fire. True. Fill in the blanks. Deepak Rag is the rag of fire. Now correct option. Blanks was fascinated by the Deep Rag. तो उसका आंसर है अकबर. Now paragraph number 13. Tansen was a great musician. He knew the rag, but he also knew that it creates an intense feeling of fire in the singer's body. जो तानसेन है वो जो राग गाने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, बट उनको भी पता था कि ये फीलिंग ऑफ फायर, इससे पूरी बॉडी है वो फायर हो सकती है. हाउएवर, सिंस द एम्पर वांटेड इट, ही हैड टू सिंग द राग. बट राजा ने हुक्म किया था तो उनको गाना ही था. तानसेन sang it in a wonderful manner. The effect was such that all the lamps in the court lit up themselves. वो इतनी अच्छी
वंडरफुल मैनर में उन्होंने गाया कि वहाँ पे जो लैंप्स थे कोर्ट में कि जो जले हुए नहीं थे वो भी अपने आप लिटअप हो गए, अपने आप वो जल गए, प्रज्वलित हो गए। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट तानसेन sang the Deep Rag with a great perfection. True. Tansen had to fulfill Emperor Akbar's wish. True. All the lamps in the court lit up themselves. अपने आप वो जल गए. True. The rag created an intense feeling of the singer's body. कैसी फीलिंग है वो क्रिएट होती है फायर की. Then all the lamps in the court lit up themselves. Okay. Now number 14. But the Tantin's body became so hot that he had to sit in the nearby river to cool himself. However, the river water began to boil, and it was clear that Tansin could soon boil to death. अब वो अपने आप को कूल करने के लिए एक रिवर के पास जाते हैं, बट इतनी उनमें हॉटनेस थी, उतनी फायर थी उनकी बॉडी में कि वो पानी वो भी बॉयल होने लगा. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. तानसेन्स बॉडी बिकम हॉट आफ्टर सिंगिंग द राग. ट्रू. द रिवर वाटर cooled down Tansin's body. False. Number 15. Tansin knew that his body could be cooled down only if someone sang Rag Malhar to bring down shower of rain. अब तानसेन को उसका उपाय भी पता था कि ये जो मेरी बॉडी में फायर है वो कैसे कूल हो सकती है. वो तो कोई राग मल्हार गाए और रेन ऑफ शावर हो, बारिश हो, तो उससे वो उसकी बॉडी के अंदर जो फायर है वो कूल हो सकती है. तानसेन सेट आउट द सर्च ऑफ समवन हु कुड सिंग राग मल्हार टू क्योर हिम. अब राइट ट्रू और फॉल्स. ओनली भैरव राग कैन ब्रिंग शावर ऑफ रेन. फॉल्स. भैरव राग नहीं, राग मल्हार. नाउ राइट करेक्ट ऑप्शन. ब्लैंक्स ब्रॉट शावर ऑफ रेन. राग मल्हार. नाउ नंबर 15. In due course, he reached Vadnagar in Gujarat, where he found two sisters, Tana and Riri, who could sing Rag Malhar. Tansen asked for her help. They agreed to sing Rag Malhar to cure him. अब उनकी ये बात के लिए वो ऐसे पर्सन की सर्च में निकल पड़े कि जो राग मल्हार जानता हो. इसलिए वो गुजरात के एक वडनगर में आ पहुँचते हैं. उनको वहाँ पे टू सिस्टर मिलती है, ताना एंड रेरी, और वो दोनों एग्री भी हो जाती है राग मल्हार के लिए. अब क्या होता है देखते हैं. ट्रू एंड फॉल्स. ताना एंड रेरी वेर क्लासिकल सिंगर्स ऑफ महाराष्ट्र. फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें वो इंडिकेट नहीं किया गया, वो बताया नहीं गया, इसलिए फॉल्स. सिर्फ ये बताया गया है कि वो उनको कहाँ मिली. फिर वडनगर इज टाउन ऑफ गुजरात. ट्रू. टाना एंड रेरी लिव्ड वडनगर. ट्रू. वहाँ पे ही रहती होगी तो वहाँ पे ही मिली होंगी, इसलिए ट्रू लिखेंगे. देन टर्न द पेज. फिल इन द ब्लैंक्स. ताना एंड रेरी लिव्ड इन वडनगर. ताना एंड रेरी कुड सिंग राग मल्हार. नाउ करेक्ट ऑप्शन. ताना एंड रेरी एग्री टू सिंग राग मल्हार, तो बी आएगा आंसर. नाउ पैराग्राफ नंबर 17. ताना एंड रेरी वेर ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियन. वो भी अच्छी म्यूजिशियन थी. When they sang Rag Malhar, rains come down in torrents, which cooled Tansen's body and saved his life. अब उनकी जो राग मल्हार थी उन्होंने गाया, उनकी गाने की वजह से बारिश भी हुई और उनकी बॉडी है वो कूल हो गई. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. ताना एंड रेरीज म्यूजिक कूल डाउन Tansen's body. ट्रू. टाना एंड रेडी सेंग द दीपक रागा. फॉल्स, वो तो राग मल्हार गाए थे, इसलिए फॉल्स आएगा. नाउ यहाँ पे राइट नेम ऑफ एनी इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. 2 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखने हैं. मैंने सारंगी और सितार लिखा है, आप और कोई भी लिख सकते हो. देन राइट नेम ऑफ एनी 2 वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो एंड हार्प. नाउ हियर ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आपको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है वो यहाँ पे आप चिपका सकते हो या तो ड्रॉ भी कर सकते हो. ओके.
Then on page number 135, here we have exercise number 5. Write the names of the musical instrument. हमें क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट के नेम दिए हुए, उसके बिलो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे उनके लिए ब्लैंक्स रखे हुए हैं, वहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. फर्स्ट है हारमोनियम, सेकेंड तबला, सॉरी यहाँ पे TABLA आएगा, तबला. देन फ्लूट, सितार, सरोद, सारंगी, फिर शहनाई, ढोल, मंजीरा. आफ्टर इट्स माउथ ऑर्गन, ड्रम, गिटार, violin, trumpet and bungle. So like this you have also complete till page number 135 in our workbook. Okay student, thank you very much.